होगा जो स्टूडेंट्स करते हैं कनेक्टर्स यूज करने में. So I'll try to cover everything I can. Sir, your voice is not coming properly. You should Okay. check your mic. Okay, hold on. Okay. Is my voice better now? Sir, it's perfect. Now Okay. perfect. Okay. Okay. So let's begin. Today I'll be covering all the connectors that we use in the SS, everything from the basics, the linking words, to the contrast words. I'll be trying to cover everything. I'll give you certain examples too of how to use them. I'll also cover some mistakes, common mistakes that students do while using the connectors. So I'll try to cover everything that I can. I have a request from you. अगर कोई भी doubt होगा, so just raise your hand. You can raise your hand in the Zoom option, and you can ask me, and मैं immediately clear कर दूँगा. So let's begin. Let's not waste any more time. So the first one I want to cover is the listing words. There are the very simple words like firstly, secondly, thirdly, finally, lastly, last but not least. तो ये सारे किस लिए होते हैं? You know that. I don't think I need to explain. जब तुमने कोई points देने हैं, first reason, the second reason, like that, so you can use them. They are perfectly good connectors. I use them. I use them in my essays. मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं. Simple connectors हैं. There is no harm in using them. So some students को लगता है they are very common, so they should not use them. ऐसा बिल्कुल नहीं है. In fact, I've seen like 9-band essays में भी ये use हैं connectors. So don't be afraid of using firstly, secondly, finally. तो ये use करने में don't be afraid. एक मैं ट्रिक जो अपनाता हूँ मैं जरूर बताना चाहूँगा. The trick I want to say is कि मैं ऐसे नहीं करता कि मैं लिख दूँ secondly. What I do is I mention like this. The second reason is that. So ऊपर firstly लिखा है, फिर मैं secondly नहीं लिखता. जैसे अब second चीज जो advantage है, आप advantages discuss कर रहे हो. So instead of writing secondly, I will start by saying the second advantage is that. तो थोड़ा मेरा natural लगता है, थोड़ा repetitive नहीं लगता है. The third thing I would say is कि don't go beyond thirdly. Thirdly के beyond जाना थोड़ा अजीब लगता है. So I never go till fourthly. Fourthly तक अगर मेरा कोई point हो रहा है तो मैं fourthly word नहीं use करने वाला हूँ. So normally I have 3 reasons या 3 advantages in most of my essays. So I start by firstly, the second reason is that, or the second advantage is that, and then I go with finally. तो ये मैं करता हूँ. One last final thing. Yes, Kursharan? सर जिदा अब फर्स्टली सेकंडली थर्डली जब दो ही पॉइंट से डिस्क्राइब करने हैं फर्स्टली तो फाइनली लिख सकते कि फिर सेकंडली तो बात खत्म कर दी या फिर सिर्फ 2 पॉइंट अगर 2 ही पॉइंट्स है ना तो मैं ऐसे करता हूं. मैं ऊपर लिखता हूं देयर आर 2 मेन एडवांटेजेस. मैं लिखता ही नहीं हूं कि मेनी एडवांटेजेस है. मैं पहले तो लिखता हूं ऊपर 2 मेन एडवांटेजेस एंड देन आई गिव फर्स्टली एंड द सेकंड एडवांटेज इज दैट. तो मैं ऐसे कर लेता हूं. फाइनली नहीं लिखता. फर्स्टली एंड सेकंडली. ऊपर भी मैं ऐसे नहीं लिखता मेनी एडवांटेजेस. ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं. ऊपर लिखा होता है मेनी एडवांटेजेस, नीचे लिखे होते हैं 1-2 पॉइंट्स. सो वो बहुत अजीब लगता है. सो अगर 1-2 ही पॉइंट्स हो तो ऊपर स्पेशली आई रिकमेंड माय स्टूडेंट्स टू जस्ट राइट लाइक देयर आर 2 मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस और देयर आर 2 मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस. सो मैं ऐसे करके कर देता हूँ. एंड फिर फर्स्टली सेकंडली इज मोर देन सफिशिएंट. सर यस जिदा थर्ड पॉइंट लिखना थर्ड मेरा लास्ट ही है समझ लो. हाँ फिर फाइनली चलता है. थर्डली में फाइनली चलता है. ओके ठीक है सर. ठीक है. थर्डली की जगह फाइनली कर सकता है. यस फिर ठीक लगता है. पर फर्स्टली के बाद सीधा फाइनली नहीं अच्छा लगता है. बस ऐसे है. थोड़ा इंग्लिश ऐसी है. One final thing, last but not least, I think a lot of you know this. आखिरी बट सब मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है. लीस्ट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस कम होना. यहाँ पे सबसे कम होना. आखिरी में पॉइंट बता रहा हूँ बट लीस्ट नहीं. पहले तो एक इसका आई डोंट रिकमेंड दैट. व्हाई आई डोंट रिकमेंड इज
because it's cliched. Cliched का meaning होता है इतना overuse हो चुका है ना कि ये impression अच्छा नहीं create करता. Like बहुत ज़्यादा overuse हो चुकी है ये बात, तो ये अच्छा impression create नहीं करता. So I do not use last but not least. मैम भी नहीं recommend करते हैं use करने को. And one final thing, अगर use करना ही है, अगर फिर भी use करना है, तो यहाँ पे ना least के पहले the नहीं आता, नहीं तो superlative degree के पहले the आता है, but it's an idiom, इसके पहले the नहीं आता है. So make sure यहाँ पे least के पहले the ना लग जाए. It's last but not least. Last but not the least नहीं होता है. So make sure use them very perfectly fine. One paragraph, I do it with this. अगर मेरे को one paragraph में points बताने होते हैं, one paragraph में I do it like this. Another paragraph में मैं repeat नहीं करता हूँ. So don't repeat them in both the paragraphs. Only one paragraph use them. अगर करने हैं. या अगर तुम्हारा पूरा ऐसे ही ऐसा है कि एक एक paragraph में एक एक point है तो भी चलता है. For example, you can begin the first paragraph with the first point firstly, the second paragraph with the second point, and then the third body paragraph with finally. वैसे भी चलता है. मगर अगर एक एक पैराग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मतलब एक एक पैराग्राफ में 3-3 पॉइंट्स हैं, तो एक पैराग्राफ में मैं यूज करूंगा, अनदर पैराग्राफ में नहीं यूज करूंगा. You get the point. Either it's used for points or it can also be used for paragraphs. But ऐसे मत करना कि दो तीन बार रिपीट करें words. So this is about listing words. Let's come the next element. ये इनके similar ही है. Yes. Okay, ये इनके similar ही हैं. ये भी points को in addition, ये ऐसे words use होते हैं कि you are giving a point, you want to add something to that point, you can use them. ये इस काम आते हैं. एक तो in addition वाले point. For example, मैं कोई point बता रहा हूँ और उसके साथ ही मैंने और भी point बताना है, तो in addition करके वो point, मतलब उसी point को आगे explain करना है, you can use them. मतलब उसी point के बारे में कुछ और explain करना है, तो तुम ये use कर सकते हो. तो ये इस तरह यूज होते हैं adding information. बट ऐसे भी यूज होते हैं कि ऐसे में एक पॉइंट दिया, उसके अलावा एक और पॉइंट ऐड करना है, तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट ऐड करना है, सो यू कैन से इन एडिशन, एडिशनली. तो फॉर एग्जांपल अब देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एडवांटेज ऑफ समथिंग लाइक फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द टीचर. तो मैंने एक एडवांटेज दे दिया, मैंने कहा कि फेस टू फेस इंटरेक्शन में ये एडवांटेज है. अब फेस टू फेस का ही मैंने एक और बेनिफिट बताना है, तो मैं साथ में यूज कर सकता हूँ. इन एडिशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन जब स्टूडेंट्स के साथ होती है तो उसमें कंपटीशन की स्पिरिट भी डेवलप होती है. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ऐड पॉइंट्स. इन एडिशन, एडिशनली, फर्दरमोर, मोरओवर, आल्सो. सो ये भी यूज होते हैं, तो यू कैन यूज देम आल्सो, नो प्रॉब्लम्स. फर्दरमोर एंड मोरओवर, इनको अगेन आई डोंट रिकमेंड बिकॉज अगेन दे आर क्लीशेड. तो ये दोनों वर्ड्स मैं नहीं यूज करता हूँ, फर्दरमोर एंड मोरओवर. एंड इसका सिंपल रीजन है कि एवरी IELTS स्टूडेंट सबसे पहले ये पिकअप करता है, उसने अपने ऐसे में फर्दरमोर एंड मोरओवर तो लगाना ही लगाना है. एंड आई फाइंड कि ये क्लीशेड हो चुका है, इवन एवरीवन यूज्स इट. सो यूज इन एडिशन, यूज एडिशनली, यूज आल्सो, यूज समथिंग एल्स, बट डोंट यूज दिस. डोंट यूज फर्दरमोर एंड मोरओवर. जस्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लीशेड है, यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्लीशेड है, रेपिटेटिवली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता. ओके, सो अगर मैंने 2 पैराग्राफ लिखने हैं, एक पैराग्राफ में फर्स्टली सेकेंडली कर दिया, सो व्हाट डू आई डू इन द अदर पैराग्राफ इज दैट इन द अदर पैराग्राफ आई डू द मेन रीजन. पहला रीजन के लिए मैं ऐसे स्टार्ट कर देता हूँ, द मेन रीजन, और फिर जब सेकेंड रीजन आता है तो मैं उसके लिए कर देता हूँ अनदर रीजन, या फिर द मेन एडवांटेज, अनदर एडवांटेज, एंड देन यू कैन गो इन एडिशन, फर्दरमोर, इन एडिशन, एडिशनली. तो ऐसे मैं पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ. तो आई डू दिस. मैंने अपने कनेक्टर्स फिक्स करे हुए हैं, जब पॉइंट्स बताने हो आई यूज वन पैराग्राफ फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, एंड द सेकेंड पैराग्राफ आई यूज द मेन एडवांटेज, अनदर एडवांटेज. ओके, अब यहाँ पे मैं एक गलती बताना चाहता हूँ, एंड अदर एडवांटेज, अनदर एडवांटेज. यहाँ पे ना स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि अनदर के बाद एडवांटेजेस लिखे आते हैं. देखो, एन का क्या मतलब होता है? एक, वन. अ का सिनोनिम है, एन इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर ए. तो अनदर का क्या मीनिंग हुआ? एक और एडवांटेज. सो प्लीज डू नॉट राइट अनदर एडवांटेजेस. So a big common mistake that I see my students making when I check their notebooks is another के साथ s लगा होता है. Never s, never.
other advantages ठीक है, another advantage ही रहेगा, singular ही रहेगा. So please do not make this small mistake. May I add something here? Yes. The another भी लिखते हैं बच्चे. The another advantage is that. वो भी हाँ. गलत है, वो भी समझाते हैं. हाँ, वो भी गलत है. क्यों? Already article है. See, the article is an आ रहा है, तो the नहीं आना. The another advantage is also grammatically wrong. Already article आ चुका है, and एक और advantage है कि the another advantage doesn't make sense. It's grammatically wrong. Please do not use it. अगर Okay. the लिखना है तो the other आएगा, the another नहीं आएगा. Okay, so an already आ चुका है, तो no other article would come. Okay. इनके अलावा मैं थोड़े लेस कॉमनली यूज जो स्टूडेंट्स नहीं यूज करते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ जो मैं अपने एसेस में यूज करता हूँ फॉर टेलिंग पॉइंट्स, एडिंग टू पॉइंट्स. सो अपार्ट फ्रॉम भी मैं यूज करता हूँ इन द सेंस अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस मेंशन्ड अबव. मतलब क्या है? इन एडिशन. अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इन एडिशन टू द एडवांटेजेस मेंशन्ड अबव. आई यूज देम बिकॉज आई फाइंड देम दे आर लेस कॉमनली यूज्ड. तो अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस मेंशन अबव मतलब उनके अलावा, जो ऊपर एडवांटेजेस मेंशन करे हुए उनके अलावा. अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस मेंशन अबव, ऑनलाइन शॉपिंग आल्सो ऑफर्स कन्वीनियंस. तो इसके अलावा, इन एडवांटेजेस के अलावा जो ऊपर दिए हुए हैं, ऑनलाइन एडवांटेज का एक और एडवांटेज ये दिया हुआ है कि वो ऑफर क्या करता है? कन्वीनियंस भी ऑफर करता है. सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू यूज इट. बट अपार्ट फ्रॉम में देखो, सीधा नहीं ऐसे कर सकता अपार्ट फ्रॉम कॉमा, ऐसे नहीं यूज जाती. देखो यूजेज थोड़ी डिफरेंट बन जाती है. अपार्ट फ्रॉम पिछला कुछ लिखना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम व्हाट? किसके अलावा? तो अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस मेंशन अबव, अपार्ट फ्रॉम द रीजंस गिवन अबव, जो तुमने ऊपर चीज मेंशन करी उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांटेज. सो समथिंग लाइक दिस हैज टू कम. ये सेंटेंस ऐसे ही आता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. These connectors when you use, they are not complex sentences. For example, I simply say, in addition, online shopping is also more convenient. पहले कोई एडवांटेज लिखा है, उसके अलावा मैंने एक और एडवांटेज लिख दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट है, तो ये ऐसा सेंटेंस है. दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. बट इफ यू लुक एट अपार्ट फ्रॉम, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट two sentences here, and that is why it is a superior connector. तो देखो कैसे, अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस मेंशन्ड अबव, जो तुमने ऊपर एडवांटेजेस मेंशन करे हैं उसके अलावा, ऑनलाइन शॉपिंग इज आल्सो ऑफर्स कन्वीनियंस भी ऑफर करती है. सो यू कैन यूज दिस अपार्ट फ्रॉम. पर एक बात ध्यान रखना, स्पेशली रीडिंग करते वक्त, अपार्ट फ्रॉम का एक मीनिंग होता है एक्सेप्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट स्वीट्स. मैं सब कुछ खाता हूँ इसके अलावा. अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट भी होता है. अपार्ट फ्रॉम का एक मीनिंग तो होता है इन एडिशन, जो हम कनेक्टर की तरह यूज करते हैं. पर अपार्ट फ्रॉम का एक मीनिंग ये भी होता है एक्सेप्ट, इस चीज के अलावा. फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस आई डू दैट, मतलब इसको छोड़ के मैं सब कुछ करता हूँ. तो नॉर्मली ऐसे यूज करता हूँ मैं सेंटेंस, अपार्ट फ्रॉम दिस. I've finished all the chapters in the book apart from the first chapter. तो पहला चैप्टर छोड़ के मैंने सारे चैप्टर्स कर लिए. Okay, apart from. Even you can use apart from in telling me, sir, हमने सारे ऐसे कर लिए apart from this and this. इन दोनों को छोड़ के हमने सारे ऐसे टाइप्स कर लिए. So apart from is also used for except. Don't get confused. इसके two usages हैं. ठीक है? And for the academic students, please remember, apart from तुम use करते हो काफी commonly कहाँ पे? Your overall. If you remember, overall में कई बार तुम्हें लिखना पड़ता है कि सारी कंट्रीज ये करती है इसको छोड़ के. तो वहां पे तुम क्या वर्ड लिख सकते हो? एक्सेप्ट लिख सकते हो या अपार्ट फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन रिलेट इट टू अ ग्राफ, ऑल द कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द यूएस सॉ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द इयर्स. सारी कंट्रीज में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई अपार्ट फ्रॉम द यूएस को छोड़ के. सो दैट्स द वे academic students use it, जब उन्होंने accept की जगह यूज करना apart from, इसको छोड़ के. accept, इसको छोड़ के, apart from. okay, next, तो इसी की तरह ना दो और words हैं similarly, in addition to and besides. पहले मैं एक बार apart from के examples करा देता हूँ, दो तीन और. तो apart from the house in London, they also have a villa in Spain. इसका क्या मतलब हुआ? उनके हाउस इन लंदन के अलावा उनके पास क्या भी चीज है? उनके पास एक विला भी है स्पेन में. सो अपार्ट फ्रॉम देयर हाउस इन लंदन, दे आल्सो हैव अ विला. तो इस चीज के अलावा उनके पास एक विला भी है. बस सिंपल, इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, जस्ट सिंपली राइट इन एडिशन टू. मतलब इन एडिशन टू देयर हाउस इन लंदन,
उसको ऐड करें उनके हाउस के अलावा, इन एडिशन टू अगर उसके ऐड करें उसके अलावा उनके पास एक क्या भी है, विला भी है इन स्पेन. सो दिस इज हाउ यू मेक दिस सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम की तरह. ओके, सिमिलरली इसी की तरह दो और वर्ड्स हैं, इन एडिशन टू एंड बिसाइड्स. ये भी इसी वे में यूज होते हैं. सो यू वांट टू यूज देम, यू कैन यूज देम लाइक द सेम वे. In addition to the advantages mentioned above, online shopping is also more convenient. तो ये भी ऐसे यूज होते हैं. देखो, remember, in addition is a straight connector. In addition to में तुम्हें पहले चीज लिखनी पड़ती है. In addition to somebody. In addition में कुछ नहीं आता. I'll make the two sentences just to clarify. Okay. In addition, I like cricket. अब ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे को हॉकी पसंद है. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बना दिया, in addition I like cricket. So two sentences come. I say I like hockey, and in addition I like cricket. Two simple sentences. In addition to makes a complex sentence. How? In addition to hockey, hockey के अलावा I like cricket. अब ये दो sentences को combine कर रहा है. तो देखो ये छोटा सा to दोनों sentences को different कर देता है. In addition to hockey, I like cricket. तो अगर यूज करना है, मेक श्योर अगर इन एडिशन यूज करना है वो सिंपली यूज होता है. इन एडिशन टू यूज करना है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है. नीडलेस टू से कि बॉटम वाला थोड़ा ट्रिकी है बनाने में, इसके थोड़े ज्यादा वैल्यू होगी, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग इट. सो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है. सो सिमिलरली यू हैव बिसाइड्स आल्सो. Besides the advantages mentioned above, online shopping is also more convenient. तो besides का भी मतलब होता है in addition, इसके अलावा. ये सारे पॉइंट्स में जब अपने एडवांटेजेस दे रहा हूँ, अगर मेरे 2-3 एडवांटेजेस हैं, पहला एडवांटेज हो गया, दूसरा एडवांटेज हो गया, थर्ड एडवांटेज के लिए आई माइट यूज इट. एक पैराग्राफ में तो मैं सोचता ही नहीं हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ आई ऑलवेज राइट फर्स्टली, द सेकंड रीजन इज दैट, एंड फाइनली. अगर वहां पे 3 रीजंस हैं, आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड इट. बट when I make another paragraph and I want to give points there also, for example reasons and solutions है. पहले पैराग्राफ में तुमने reasons बता दिए, 3 points दे दिए. अब तुम solutions बता रहे हो. Solutions के लिए I'll start by say the main solution is that, or one solution to this is, okay, then you say another advantage or another solution is this, another action that can be taken is this. ये second आ गया. और फिर तुम third advantage देना है, third solution देना है, तो तुम क्या यूज कर सकते हो? Apart from this, apart from the solutions mentioned above, I also believe the government can do this. The government can also do this. The government ये भी कर सकती है. तो ये सारे जो words हैं ना, अब मैंने इनका usage सिखाया, where I would use them. तो ये सारे use points को lay down करने के लिए use होते हैं. ये वाले words, starting वाले words, listing के लिए I use them in one paragraph, and these words I use them in the second paragraph. I do not prefer furthermore and moreover because they are cliched, overused words. So I would not recommend you to also use them. That's my suggestion. Do not use other things. In addition, nahi karte bachche use in addition. Additionally, students don't use it. So you can use them. And they're normal English, natural English. So natural speakers use karte na. These are words that natural speakers use. Furthermore, तो मैंने कभी use ही नहीं करा था अपनी life में IELTS पढ़ाने से पहले. IELTS पढ़ाने भी मेरे को बच्चों ने सिखाया है वर्ड rather than me using it, क्योंकि मैं ये वर्ड को प्रेफर करता ही नहीं था. I knew its meaning, पता था, पर मैं यूज नहीं करता था because it looks so artificial. Furthermore, moreover, ये words इतने अच्छे नहीं लगते. Okay, so any problems अभी तक, कोई डाउट किसी का, anything? If not, then I'll move on to the next set of connectors. Anything? I can stop and explain anything again. Yes, Tafan? Yes? Yes, Stefan? सर हेलो. Yes, yes. सर ये कनेक्टर यूज कर सकते हैं टू बिगिन विद, मैंने कहीं से सीखा है इन फर्स्ट पैराग्राफ में. To begin with कर सकते हैं, पर ये नहीं फर्स्ट पैराग्राफ के पहले ही कर देना है. So let me tell you how I'll use to begin with. So okay. So how I'll use begin with, I'll show you. So there are many advantages. बहुत सारे advantages हैं of online shopping. I'm sorry I'm taking the same example again and again, but it's on my mind. Now I want to start with the first advantage. So I will say to begin with. Okay, now this is a correct usage of to begin with. How I see students using it is,
To begin with, there are many advantages of online shopping. ये मेरे को गलत लगता है, ये गलत यूजेज है. There are many advantages of online shopping to begin with. Now this to begin with represents कि मेरा पहला point ये है कि अगर तुम sentence के अगर तुम paragraph के पहले ही to begin with लगा दोगे उसका कुछ मतलब ही नहीं है. To begin with का क्या मतलब है? ये मेरा पहला paragraph है. You don't put a connector like this के बताने के लिए मेरा पहला paragraph है. It should be point oriented. तो यहाँ पे there are many advantages. Then you say to begin with, and then you can say secondly or another advantage or whatever you want to continue from this, apart from, besides this, in addition, and उसके बाद you can continue. So just use it correctly. That's it. और मेरा कोई suggestion नहीं है. ठीक है, पर ये नहीं होता कि paragraph के पहले आता है. Paragraph में पहले point से पहले आता है. Not in the beginning of a paragraph. Before the first point in the paragraph. That's where you put to begin with. आफ्टर कोई सेंटेंस बनाने के बाद सब यूज कर सकते हैं. आफ्टर कोई पॉइंट स्टार्ट करने के बाद. For example, let's imagine you have a paragraph mentioning advantages of something. यहाँ पे अब उसमें तूने पहला advantage बताना है, तो use करेगा. Then you will use the word to begin with. Okay. So it is a listing word. Listing example है. मतलब example. See, you have different points. You want, when you're giving it to the examiner, you want clarity in the examiner's point कि ये मेरा पहला point है, ये मेरा second point है, ये मेरा third point है. तो वो पहले point के जब तूने शुरू करना है उससे पहले तो to begin with लगाएगा. That is the role of to begin with. It's a listing linking word. List करता है point. Okay. Thank you, sir. अच्छा. Now one final thing before I miss, because I did besides. कई बार ना student besides and beside में गलती कर देते हैं. तो इन दोनों का difference भी please learn. Besides होता है इसके अलावा. So I like this besides cricket. For example, in addition to, इसका ये meaning है. For example, he plays hockey besides cricket. तो hockey खेलता है cricket के अलावा. In addition to cricket, he plays hockey. Besides, ये meaning होता है. Beside का meaning होता है उसके साथ. अब मैंने जानबूझ के focus करा. You don't focus. Beside कहते हो. Beside होता है next to someone. For example, देखो side का क्या मतलब होता है साथ में. Beside मतलब मेरे साथ में. So if you want to tell someone to sit next to you, you can say sit here beside me. तो beside का मतलब होता है साथ में. Besides का मतलब होता है इस point के अलावा. तो besides मतलब point के अलावा, beside होता है उसके साथ. Beside. Okay. Is it clear? Any doubts? Any doubt, or is it clear the difference between beside and besides? Besides मतलब उसके अलावा. Beside मतलब किसी के साथ, location के साथ ये word oriented है. आप यहाँ पे बैठे हो उसके साथ. For example, my house is besides the water tank. Beside the water tank मतलब मेरा घर water tank के side में है, उसके साथ में है. Beside the water tank. अब यहाँ पे मैं beside use करूँगा. अब मैंने बोलना है there are many restaurants in Fagwara besides Subway. मतलब Subway के अलावा बहुत सारे restaurants हैं Fagwara में. उसके अलावा, in addition to Subway, there are many other restaurants. Besides, Subway के साथ में कोई चीज है. My house is beside Subway. मेरा घर Subway के साथ में है. तो beside. Okay. Is it clear? Beside and besides. Can I move forward? Minor things. Yes, sir. Okay. So moving forward, changing the tone. Changing the tone जब use होता है जब देखो एक ऐसे है उसमें तुमने फायदे भी लिखने, नुकसान भी लिखने. So when you're going from advantages to disadvantages, you're going to change the tone of the essay. तो वो जब change tone करते हो ना, you use these connectors. On the other hand, however, despite, in spite of, although, while, but, ये सारे words use करते हो. तो I will tell you, देखो सारे words का meaning same है. सारे words contrast करने के काम आते हैं जब तुम tone change करते हो, पर सबकी usage थोड़ी different है. So let's focus on their usage. कौन सी चीज कहाँ पे use करनी है. They are the most important ones and the most wrongly used ones. ये सबसे important है and सबसे गलत तरीके से use होते हैं. So let's focus on them. So सबसे पहले on the other hand and however को लेते हैं. On the other hand and however are very simple words. What they do is they change the tone
and then you can write whatever you want. As soon as you write on the other hand, I come to know that the tone has changed. You do not need to write anything else. बस उसके बाद जो बात होनी है वो लिखना. On the other hand, there are also a few advantages of whatever you want to write. On the other hand, बहुत सारे थोड़े बहुत advantages भी हैं. On the other hand, जैसे ऊपर तुमने disadvantages लिखे हैं, अब तुमने बस tone change करके कहना है कि थोड़े बहुत disadvantages भी हैं. So I will simply write, on the other hand, there are also a few advantages or disadvantages of something. You begin like that. However also does the same thing. However, there are also a few disadvantages of this thing. So that's how you use how, on the other hand, and however. They're very simple. Simple sentences इनसे बनते हैं. इसमें पुरानी कोई बात नहीं आती है. सीधा on the other hand लिखा तो मेरे को पता है tone change हो गई. So these are the words that you can use for changing the tone, especially when you're making new paragraphs. For example, एक paragraph में मैंने फायदे लिखे हैं, next paragraph मैंने disadvantages लिखना है, you can use them on the other hand and however perfectly well. Okay. May I add something? Yes. On the other side लिखते हैं बच्चे, वो बता दे वो, is that okay or it should? On the other side, I consider it informal. So I would ask you to go proper formal idiom, which is on the other hand. तो proper जाओ, on the other side मत लिखो, on the other hand लिखो. तो IELTS essay is supposed to be formal. ये नहीं होगा कि hand की जगह तुमने side कर दिया तो तुम थोड़ा different हो गए. You are going to lose bands because it loses its formality. Formal nature खत्म हो जाती है. So I do not recommend writing on the other side or anything like that. तो बिल्कुल नहीं. एक दो words और students जो लिखते हैं paradoxically, it's a horrible word to put here. And people use it because they learn it and उनको लगता है इसका ये meaning है. Paradoxically का meaning totally different होता है. Paradoxically का meaning होता है you have a certain belief पर वैसा होता नहीं है. For example, it's a paradox situation. ऐसी है मतलब कि तुम expect ऐसे कर रहे हो पर ऐसा नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, तो paradox है. So something like that. Paradox is something like something very different from what is expected. So that is a paradox. So यहाँ पे तो बिल्कुल सूट नहीं करता. So I'm not going to focus much on paradox, and neither did I here, because it's not a connector that I want you to use. So please don't write paradox. Paradox पे ध्यान देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं use करना. Yes, Kusharan, any doubts? सर जेड़ा पैराडॉक्स ये कहने ओपिनियन ऐसे यूज हो सकता है कुछ नहीं, कहीं नहीं यूज करना. बहुत ऐसे में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे वो यूज होगा. पैराडॉक्स इज नॉट. पैराडॉक्स का मैं एग्जांपल देती हूँ. मेडिकल टर्म में हम यूज करते हैं. जैसे हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, एज जितनी एज हो ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. पर पैराडॉक्सिकली अगर कोई 80 साल का बंदा, उसको पहले हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहा, तो 80 साल के बाद होता नहीं है कभी भी. मतलब इट्स पैराडॉक्सिकली उतनी हाई एज पे ब्लड प्रेशर की बीमारी पहली बार नहीं होती है. तो ये पैराडॉक्स का यूज है. यहाँ पे एसेज में, आइल्ट्स राइटिंग में कहीं भी नहीं आना. नेवर एवर यूज इट. ओके ओके मैम. Okay, so let's okay, let's move on. On the other hand and however, very simple, you put a sentence. Despite and in spite of. देखो, in spite of, despite की ना, I would say हिंदी कर लो, बावजूद. जो अब देखो मैं कैसे यूज करता हूँ. बावजूद एडवांटेजेस मेंशन करें. देखो बावजूद वाला जो सेंटेंस आएगा ना, वो ऐसे नहीं आएगा कि वो नया सेंटेंस बनेगा. उसी सेंटेंस में तुम्हारा कंपैरिजन आना है. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ. पहले तो एक गलती देखो मैंने यहाँ पे सिखाया था, एंड फिर जब नोटबुक आई ना, स्टूडेंट्स ने इन स्पाइट ऑफ को कंबाइन कर दिया. तो देखो ऐसा नहीं है, ये इकट्ठे नहीं आता, ये रॉन्ग हो जाएगा. इन स्पाइट ऑफ पहली बात तो ये 3 वर्ड्स होते हैं. अगर डिस्पाइट लिखना है, one word, in spite of is 3 words. So let's start with the first mistake. Second thing, ये on the other hand and however से different है. How are they different? ये same ही sentence में comparison भी करते हैं. For example, देखो, despite the advantages mentioned above, बावजूद जो advantages ऊपर mention करें, I still believe, मैं फिर भी believe करता हूँ कि online shopping detrimental है. तो बावजूद इस चीज के मैं ऐसा बिलीव करता हूँ. तो ये ऐसा रिप्रेजेंट करने के काम आता है. बावजूद इस चीज के फिर जो तुम्हारी साइड है, तो उसके बावजूद भी. फॉर एग्जाम्पल सिंपल ले लो सेंटेंस. I like shopping. Okay. And any common sentence बावजूद उसके, कुछ भी सेंटेंस बावजूद उसके.
In spite of tired, I went to uh, I I went to school. Yes, पर अब देख despite of tired नहीं, despite of tiredness. तो ना अब Yeah. अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ. तो despite जो है ना, despite is like a adjective. तो despite के बाद ना noun आना है, सीधा noun. Despite के बाद जैसे despite किस चीज के despite, बावजूद किसके, advantages के बावजूद, उसके बाद सीधा noun आना है. Despite tired, despite I was tired नहीं, despite my tiredness, मेरी टायर्डनेस, तो सीधा नाउन आया. डिस्पाइट मेरी टायर्डनेस के आई वेंट टू स्कूल. तो डिस्पाइट के बाद सीधा नाउन आता है, टायर्डनेस. तो प्लीज मेक श्योर कि ये सेंटेंस का यूजेज ठीक हो. डिस्पाइट द एडवांटेजेस, डिस्पाइट द डिसएडवांटेजेस, डिस्पाइट व्हाटएवर द नाउन शुड कम. डिस्पाइट आई वो नहीं शुरू करना, डिस्पाइट देयर आर नहीं, डिस्पाइट द एडवांटेजेस सीधा. तो इसके यूजेज में गलती होती है. सो इसका भी यूजेज, लर्न द यूजेज. Despite working very hard, he could not clear the exam. तो यहाँ पे जो working है ना, वो भी noun gerund है, वो verb लगता है, but that is gerund form. तो वो भी थोड़ा बहुत बता दे, फिर उसमें फिर verb की feeling आ रही है. So what I'll do is I'll share, I'll open this word in Oxford and show you the sample answers. That will be the best thing. Okay, so it's a preposition actually. Here it's calling it a preposition. Now I'll show you how it's used. Dekho, despite applying for hundreds of jobs, despite the fact that. तो सीधा उसके बाद ना I just make sure कि despite के बाद ना जो चीज है वो लिखी जाए. अगर मैं सिंपल चीज में despite working hard, despite tiredness, despite the advantages, despite the disadvantages, I normally make it very simple. I don't call it anything. मेरे लिए तो ये होता है, despite के बाद ऐसा नहीं लिखना despite I was tired, नहीं, despite tiredness ऐसे लिखना है, खोल के नहीं लिखना. मैं स्टूडेंट्स को ऐसे बोलता हूँ, सीधा नाउन लिखो, सीधा चीज लिखो जो हो रही है. despite क्या चीज है, despite advantages, despite tiredness, despite working hard, despite not sleeping, despite not sleeping, I woke up early. तो कुछ भी. Sir, ये example देखा, she was good at physics despite the fact that she found in boring. तो इसके बाद noun कहा है ये, तो फिर sir the fact. अच्छा, the fact, okay, got it, the fact आ गया, got it. The fact आ गया ना. तो ऐसे है, जो चीज आ जानी है उसके बाद. ठीक है. So just make sure that you use it properly. इनकी यूजेज में गलती होती है. Okay. And इसीलिए इनके नंबर भी ज्यादा हैं, because they make complex sentences. So despite and in spite of थोड़ा tricky है. I don't think basic students कर पाते हैं. If you can master the usage, you use them. If you can't, use on the other hand है ना over. तो ये है. तो बस और एक गलती जो मैंने दोबारा बताई थी, in spite of. तो in spite of and despite, please use it properly. ठीक है. So there are, देखो दो तीन ways में यूज होते हैं. Normally मैं जैसे यूज करता हूँ ना, मैं अपना यूजेज बताता हूँ. So let me go back and tell you how I use it. So मैं कैसे यूज करता हूँ. पहले मैं देखो मैं ऐसे यूज करता हूँ. I use it like that. Despite concession, मैं कोई concession देता हूँ कि ये चीज है, इसके कारण प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट कंसेशन यहाँ पे क्या था, लाइक एग्जाम्पल यू सेड टायर्डनेस. अब टायर्डनेस एक्सक्यूज है ना, एक तरह से कंसेशन को एक्सक्यूज मान लो. डिस्पाइट एक्सक्यूज, और उसके बाद जो मेन पॉइंट है, उसके बाद फिर भी एक्सक्यूज के बावजूद भी क्या हुआ. तो आई यूज इट लाइक दिस. डिस्पाइट पहले लिखा, फिर मैं अपना एक्सक्यूज लिखा. जैसे एक्सक्यूज, तेरा एक्सक्यूज क्या था, टायर्डनेस. एंड फिर एक्सक्यूज के बाद फिर अपना मेन पॉइंट लिख दिया. क्या मेन पॉइंट लिख दिया कि आई वेंट टू स्कूल. उस एक्सक्यूज को कवर अप बावजूद भी मैं स्कूल गया. तो दैट इज हाउ आई यूज इट. आई यूज इट लाइक दिस, डिस्पाइट एक्सक्यूज, एंड देन आई गिव द जो मैंने ओवरकम करने के लिए चीज करी, जो मेन पॉइंट करा एक्सक्यूज के बावजूद. फॉर एग्जांपल अभी लास्ट एग्जांपल जो मैंने लिखा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फिजिक्स वाज बोरिंग, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फिजिक्स इज बोरिंग, शी इज गुड एट इट. तो पहले एक्सक्यूज दे दिया. क्या एक्सक्यूज है कि फिजिक्स बोरिंग है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट फिजिक्स इज बोरिंग, शी इज गुड एट इट. वो फिर भी उसमें अच्छी है. सो दैट इज हाउ आई यूज इट, डिस्पाइट.
सो इसको ऐसे ऐसे सोचा करो, डिस्पाइट के बाद कंसेशन आना है, वो हमेशा ऐसे आना है, डिस्पाइट के बाद कंसेशन आना है। डिस्पाइट सेंटेंस के बीच में लगाओ या डिस्पाइट पहले लगाओ, कंसेशन डिस्पाइट के पहले आना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, कि डिस्पाइट इस बात के कि मैं टायर्ड था, मैं फिर भी स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, सो लाइक दैट। सो कंसेशन डिस्पाइट के बाद आ रहा है, देखो ये मेन फैक्ट है, और कंसेशन किसके बाद आ रहा है? डिस्पाइट के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार ये गलती करते हैं, डिस्पाइट के बाद ऐसे लिख देंगे, डिस्पाइट आई वेंट टू स्कूल, आई वाज टायर्ड डिस्पाइट आई वेंट टू स्कूल, वो सही नहीं बनता। सो जस्ट मेक श्योर कंसेशन यू पुट इट आफ्टर डिस्पाइट। सो दैट इज माय सजेशन। ओके, एनी डाउट्स पूछो, नहीं तो आई मूव फॉरवर्ड। सर ये सर कॉन्टेक्स्ट दूसरी, या गो अहेड। सर जब हम जैसे हम आपने कहा कि डिस्पाइट यूज करेंगे जब भी ऐसे हाँ। में, तो हमें एडवांटेजेस का बताना हो कि तो हम डिस्पाइट ऑफ एडवांटेजेस लिखेंगे या डिस्पाइट एडवांटेजेस, वो ऑफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे सेंटेंस में? Not necessary to put it. Despite of the advantages, despite the advantages, I don't use it. I normally don't use it. Despite the disadvantages, मैं तो नहीं लगाता. Despite the advantages, ओके I don't use it. So despite the advantages, but Janika, remember किस ऐसे में आएगा? उसी ऐसे में आएगा जिसमें तुमने disadvantages भी बताना है. यस यस राइट। Okay, just make sure that happens. अब ना मैंने ये करवाया, एक ऐसे में सिर्फ एडवांटेजेस लिख के आ रहे हो, उसके अंदर ये वाले वर्ड्स आने ही नहीं चाहिए। अगर एक ऐसे completely agree है, completely disagree है, so there is no place for such words. On the other hand, however, despite, in spite of, although, while, but, ये वर्ड दिखना ही नहीं चाहिए उस ऐसे में जो वर्ड completely one-sided वर्ड ऐसे। तो अगर एक ऐसे में सिर्फ फायदे लिखे जा रहे हैं, कोई जगह नहीं है ऑन दी अदर हैंड की, कोई जगह नहीं है however की, कोई जगह नहीं है डिस्पाइट की, while की, although की, कंट्रास्ट है ही नहीं। Only in the S's where there is a contrast will you use such words. Otherwise, a big no-no. Okay, so अब आ जाते हैं although, in spite of। तो अपना ये तीनों मैं करता हूँ, मैं तुम्हें इन तीनों का बताता करता हूँ। मैं तीनों तब यूज करता हूँ जब मैं अपना ऐसे में पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर मैंने फायदे लिखे हैं, अब मैं डिसएडवांटेजेस लिखने जा रहा हूँ। ओके, ये जब मैं यूज करता हूँ, जब मैं अपनी टोन चेंज कर रहा हूँ, जब मैं नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन एडवांटेजेस, नाउ आई वांट टू राइट डिसएडवांटेजेस, so I'll do what? I'll start with on the other hand, I'll start with however, or I'll start with despite the advantages mentioned above, I still believe that online shopping is detrimental in the long run. तो ऐसे करके मैं नया पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसको यूज करता हूँ। मैं ये इंट्रोडक्शन में नहीं वर्ड्स लिखता हूँ, ना मैं ये कंक्लूजन में वर्ड लिखता हूँ। On the other hand, however, and despite, these are not the words that I use in my introduction or conclusion. So, पर अब देखो, इंट्रोडक्शन में भी तो लिखना पड़ेगा कि हाँ, बावजूद इस बात के फायदे हैं, मेरे को ये नुकसानदायक लगता है। इंट्रोडक्शन में भी तो ये बात लिखनी है, कंक्लूजन में भी लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में जो मैं वर्ड्स यूज करता हूँ ना, कंपैरिजन के लिए, कंट्रास्ट के लिए, वो मैं यूज करता हूँ although and while. So let me show you how to use them. For example, although का भी अब देखो ऐसे ही यूजेज है। although के बाद तुम कंसेशन देते हो कि although हालांकि ये चीज है। although की हिंदी हालांकि, या although की पंजाबी हालांकि होती है। although मतलब हालांकि ये चीज है, फिर भी ऐसा हो रहा है। So let me give the example. अच्छा, एक ऐसे था, वो ऐसे में था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए उनको पनिश करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में ना, ऐसे में मेरे को लगता है हाँ, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल तो हैं अपने बच्चों के बिहेवियर के लिए, मगर उनको पनिश करना ठीक नहीं है। पेरेंट्स को पनिश करना नहीं ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ पेरेंट्स इन अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा रोल है। तो अब मैंने अब यही बात करनी है, हालांकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, आई डू नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ पनिशिंग देम। अब देखो मेरा कंट्रास्ट शो हो रहा है। ऐसे में कंट्रास्ट जो बॉडी पैराग्राफ्स में शो होगा वो डिफरेंटली शो होगा। जब एक ही लाइन में शो करना है, देन जब इंट्रोडक्शन में वो लाइन लिखनी है, तो वो लाइन यू कैन मेक विद व्हाइल और ऑल्दो। हालांकि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, आई डू नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ पनिशिंग देम। और जो ऐसे ऐसे आएगा, आप देखो ऐसे कैसे आएगा। पहले पैराग्राफ में देयर आर मेनी रीजंस
तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है. पेरेंट्स उनको सिखाते हैं. Okay, is it better now? No? Yes, yes sir. Okay. So देखो, let's consider an essay. In the essay introduction में, I want to say that although parents are responsible, I do not support the idea of punishing them. कि although parents responsible होते हैं बच्चों के behavior के लिए, उनको punish नहीं करना चाहिए. तो ये बात मैंने जब इंट्रोडक्शन में लिखी अपनी एक ही लाइन में, तो मैंने although के साथ ये लाइन लिखी. Now when I come to making paragraphs, I will write one paragraph के why, पहले तो क्यों parents responsible है. तो एक paragraph मैंने लिख दिया, there are many reasons why I believe that parents are responsible. बहुत सारे reasons हैं. अब इस paragraph में reasons आ गए. अब when I go to the next paragraph, I'm going to change my tone and discuss what कि उनको punish करना गलत है. तो you can start with on the other hand, or you can start with despite, on the other hand, or despite, or you can go with however. तो तुम ये तीनों words के साथ paragraph change करोगे. So learn the difference between using although and while. Although use करते हैं हम introduction में, जब हमने अपना opinion देना है one sentence में. Complex opinion, again complex opinion, partial opinion. Partial opinion कैसे? Parents are responsible, but they should not be punished. Question said that they are responsible and they should be punished. तो responsibility वाले बात से मैं agree कर रहा हूँ. तो यहाँ पे भी तुमने agree कर लिया. और जिस बात से तुम disagree कर रहे हो वो उसके बाद लिख दिया. I do not support the idea of punishing them. तो अब पहले paragraph में आ गया, there are many reasons why I believe that parents are responsible. Second paragraph में क्या आ जाएगा? On the other hand, I do not agree that punishing parents for their children's behavior is right. कि punishing parents उनके बच्चों के behavior के लिए is right. कि ये बात ठीक है. तो second paragraph में ये आ गया. तो introduction में thesis के लिए मैंने although use करा. पैराग्राफ चेंज करके मैंने कौन से वर्ड्स करे जो हमने ऊपर करे थे, ऑन द अदर हैंड या डिस्पाइट या however, तो वो वैसे यूज कर लिए. सो इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन although and on the other hand, despite and however कहाँ पे यूज होना है? Yes sir. Got it. Got it? Okay. अच्छा, अब इसका यूजेज देख लो. यूजेज मेनली ऐसे ही होता है, ऑल्दो अगर सेंटेंस के पहले हो तो ऑल्दो के बाद कंसेशन और फिर अपना मेन ओपिनियन. तो कंसेशन सोच लो जो तुम बात थोड़ी सी एग्री करते हो, और मेन ओपिनियन जो तुम्हारा वो है. कंसेशन अगेन टेक इट लाइक एन एक्सक्यूज. तो एक्सक्यूज यहाँ पे क्या था कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है. एक्सक्यूज दे दिया, हाँ मानता हूँ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है मगर पनिश करना गलत है. तो सिमिलरली देखो, let me give another example. अब although अगर मिडल में लगाओगे तो भी उसके बाद ही कंसेशन आएगा. तो I believed her although she lies sometimes. मैंने उसको बिलीव करा हालांकि वो कई बार झूठ बोलती है. ये कंसेशन है कि वो झूठ बोलती है कई बार. और मेन पॉइंट क्या है कि मैंने उसकी बात को फिर भी एग्री कर लिया, मैंने फिर भी उस पर बिलीव कर लिया. तो although के बाद कंसेशन आना है और उसके पहले मेन ओपिनियन आना है. और अगर although से स्टार्ट हो रहा है तो although के बाद कंसेशन, फिर कॉमा and then the main opinion. So जैसे हमने ऊपर यूज करा था although. तो ये यूजेज है इसकी although की, and it's used in the introduction or in the conclusion. Okay. Similar is the usage of while. While भी similarly use करते हैं. While can be used in the introduction or in the conclusion. Does the same thing. They are interchangeable. So I do what? In the introduction I use while. In the conclusion I use although. ताकि मेरा repetitive ना हो. तो एक बार मैं while use कर लेता हूँ, एक बार मैं although कर लेता हूँ. And students are not comfortable with this. So if you master these two, बहुत अच्छे bands आ सकते हैं तुम्हारे. Yes, Stefan? Any doubts? Okay. सर वाइल का यूज तब यूज करते हैं ना कभी टाइम के लिए भी एट द सेम टाइम. वो Yes, while का another usage है कि while का ये भी मतलब होता है उसी समय. तो right, I fell while playing. इसका क्या मतलब है? जब मैं खेल रहा था तो मैं गिर गया. तो while का another use होता है कि उस समय कोई चीज उस समय हो रही हो तो तुम उसके लिए while भी लगा सकते हो. While is like a shortening. When I was playing, जब मैं खेल रहा था, इसको एक ही वर्ड में कहने के लिए you can put a while. So I fell while I was playing. So Okay. something like उसी समय. Yes, that is another usage of while. Okay, but वो usage arts में बहुत कम होती है.
So maybe speaking में अच्छी तरह हो सकती है कि you want to tell the examiner when you're speaking something, you want to tell कि मैंने ये काम करा उस समय. So I went to the mall while in Delhi. जब मैं दिल्ली में था तो मैं मॉल गया. So I went to the mall. Whatever you did, उस समय मैंने ये करा. तो while वहाँ पे speaking में is a good usage of that while, but यहाँ पे नहीं होगा. अब देखो while का थोड़े बहुत usages जो गलत हैं और थोड़े बहुत जो अभी मैंने ऊपर से निकाले हैं जो certain मैं वही गलतियां जो students के देखता हूँ. पहले तो ये last देखो. And can someone tell me why is it wrong? देखो मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत नुकसान है ऑनलाइन शॉपिंग के, मैं उसको बेनिफिशियल कंसिडर करता हूँ ओवरऑल. ये सेंटेंस में यहाँ पे बट नहीं आएगा. यस एग्जैक्टली. तो अब एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ऑल्दो भी लगाते हैं और क्या भी लगाते हैं बट. एंड ट्रस्ट मी, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी ये करते हैं. Like I have had teachers who have got 7.5 bands and who made the same mistake कि but भी लगा देते हैं. So please make sure कि but नहीं आता है. ठीक है. Although there are certain drawbacks, I consider it to be beneficial overall. यहाँ पे but नहीं आना. अगर but लगाओगे तो although नहीं आना. Although लगाओगे तो but नहीं आना. Put one thing. दोनों मत डालो. Contrast दो बार नहीं आएंगे sentence में. Okay. So that is this. Now what about इस sentence में क्या problem है? Can someone tell me? The second sentence. Sir, however से हमेशा नया सेंटेंस होते हैं. Yes. नहीं आना है. Yes. So I covered it very initially and she remembers it. देखो, however on the other hand से कभी भी sentence join नहीं होते हैं. मतलब तुमने advantages बता दिए. अब तुम एक नया sentence बता के बताओगे कि disadvantages भी हैं. Same sentence combine नहीं होते. अगर तुमने same sentence combine करने थे तो तुम्हें क्या use करना चाहिए था? While या although. So that is the difference between however and while and although. While and although से sentences combine भी होते हैं. However doesn't combine the sentences. However makes a new sentence. Any doubt in this? Okay. Anyone doubts? No? Okay. और पहले वाले में क्या गलती है? तो शॉपिंग के बाद कॉमा आएगा. I Yes. consider. Yes. So that's the same thing. अब while जो है वो complex sentence बनाता है. So do not make a simple sentence with while. While के साथ आधी बात हो जाएगी. यही गलती ना students because के साथ भी करते हैं. For example, they'll make a sentence. I got good marks. बना दिया. अब नया sentence बना रहे because I studied. ऐसे नहीं होता कि तुम एक नया sentence बना क्योंकि मैं पढ़ा. अब ये तो incomplete है. Because वाले sentence में साथ में effect भी आएगा. Because के बाद तो देखो reason आता है. क्योंकि मैं पढ़ा. ये reason है. पर साथ ही उसी sentence में effect भी आता है. I passed the exam because I studied hard. मैंने exam pass करा क्योंकि I studied hard. तो उसी sentence में because I studied hard भी आएगा. ये भी sentence को अलग-अलग नहीं लिखना. I passed the exam because I studied hard together with a comma in between. Not because में comma नहीं चाहिए होता. Sorry, but not full stop. I passed the exam full stop because I studied hard. Completely wrong. So make sure you don't make this mistake too. एक और गलती जो मेरे को अभी याद आ रही है ना स्टूडेंट्स करते हैं वो है if वाली गलती. Let me see if you can tell me. If it rains, I will. Okay. अभी तो मैंने ना गलती करी नहीं. So I think you'll catch it. Let's see if you tell me why is it wrong. First and second में कौन सा वाला गलत है? The answer गलत है शायद. Second वाला गलत है सर. And you know why? And this is a common mistake too. अगर बारिश हुई तब नहीं मैं जाऊंगा, तब थोड़ी आएगा sentence. तब तो है ही नहीं. So this I've seen very commonly students do कि if के साथ उन्होंने comma के बाद then लगाना ही लगाना. They will put a then. It's not needed. If it rains, I will. अगर बारिश होगी तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा. अगर बारिश नहीं होगी तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा. तो मैं लगाने की जरूरत है नहीं. उसके बाद तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा. तो then is not needed. Don't put a then. So that is another mistake that students make. तो ये गलतियां थी. Okay.
another word that I use that I like, but मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, but इसका usage बहुत ज़्यादा atypical है, बहुत specific situation में मैं use करता हूँ. Again, when I'm changing the paragraph. For example, देखो, पहले मैंने एक साइड मेंशन करी कि बहुत सारे फायदे हैं. पहले मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया. अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं. उस केस में मैं एडमिटेडली यूज करता हूँ. देखो, लेट्स टेक द एग्जांपल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पहले मैंने बता दिया कि पनिश करना गलत है, पेरेंट्स को पनिश करना गलत है. क्यों गलत है? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 दे दिया. फिर हाँ मैं मानता हूँ कि पर पेरेंट्स की बच्चों के बिहेवियर के लिए पेरेंट्स कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल तो हैं. तो हाँ मैं मानता हूँ, उसके लिए वर्ड क्या आ रहा है? एडमिटेडली. हाँ मैं ये बात एडमिट करता हूँ. तो अगेन एडमिटेडली के बाद क्या आता है? कंसेशन आता है. पर जैसे वाइल एंड हाउवर में तो कंसेशन उसी सेंटेंस में आता था ना, मतलब वो सेम सेंटेंस है. एडमिटेडली के बाद नए सेंटेंस में कंसेशन आता है. तो एडमिटेडली हाउ आई यूज इट, लेट मी गिव यू. तो देखो, ऑन दी वन हैंड ऑनलाइन शॉपिंग हैज मेनी एडवांटेजेस. ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे फायदे हैं. अब जो कम वाली साइड है, जो तुम्हारी कंसेशन वाली साइड है, जो तुम्हारी लेस वाली साइड है, हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़े बहुत नुकसान भी है. ऐसे भी यूज करता हूँ. तो दिस इज फॉर अ न्यू पैराग्राफ. जब न्यू पैराग्राफ बनाना है उसके बाद तुमने देना है कि हाँ मैं मानता हूँ थोड़े बहुत नुकसान भी है. तो ऊपर बहुत सारे फायदे लिख दिए, फिर तुमने नीचे 1-2 नुकसान लिखने, तो हाँ मैं मानता हूँ 2-3 नुकसान भी है. फिर 1 and 2 there are a few disadvantages also, and then you can give a few disadvantages. तो उसमें में भी admittedly यूज होता है. admittedly क्यों मैं अच्छा मानता हूँ? क्योंकि थोड़ा कम यूज होता है. पर अगेन आई सी स्टूडेंट्स मिसिंग इट अप. तो अगर तुम्हारे को नहीं क्लियर, डोंट यूज इट. इफ इट्स क्लियर देन यूज इट. नहीं तो मेरे से पूछ के करो, नहीं तो ऑन द अदर हैंड एंड हाउ पे स्टिक करो. यस, गिव मी एनी डाउट. सर ये उस ऐसे में यूज कर सकते हैं ना, जैसे एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस, तब यूज हो सकता है ये वर्ड एडमिटेडली. यस. तो फर्स्ट यू मेंशन एंड जरूरी है कि पहले तुम ज्यादा वाली साइड लिखो. तो हाँ जी. yes, so you start with writing the more things. So advantages are more. So I first mention the advantages, then I write in the second paragraph, admittedly there are also a few disadvantages. कि हाँ मैं थोड़े बहुत disadvantages भी हैं. So that is the way I use it too. So so make sure, because when I did this now, my students started using it कि पहले थोड़े बहुत disadvantages हैं, admittedly बहुत सारे advantage भी हैं. तो हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बट तुम्हारा तो मेन ही ओपिनियन के एडवांटेज ज्यादा है, तो तुम एडमिट थोड़ी करोगे कि एडवांटेज ज्यादा है. एडवांटेज ज्यादा थोड़ी एडमिट करोगे. क्या बात से एडमिट करोगे? एडमिट तो ये बात करोगे कि नुकसान भी है, क्योंकि तुम ओवरऑल उसको क्या बता रहे थे? फायदेमंद बता रहे थे. तो तुम्हारा एडमिशन किस बात की आनी चाहिए? कि नुकसान भी है. हाँ फायदेमंद है मगर नुकसान भी है. तो एडमिट इज ऑलवेज डन विद द लेस साइड. सो मेक श्योर दैट प्लीज यूज इट करेक्टली. Okay. Any doubts admittedly mein or anywhere else till now? Okay. So now quickly a recap of what we have done till now. Quick recap. Where to use what? Introduction में अगर partial introduction है, partial thesis है, तो while and although लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं. अगर completely agree लगाना है, उसके पहले while लगा हुआ है, बहुत बड़ी गलती है. While हमेशा partial में आता है, नहीं तो नहीं आता. तो उसके बिना तो ये words भूल ही जाओ. फिर पैराग्राफ 1 जब लिखोगे तो लिंकिंग वर्ड्स. पैराग्राफ 1 से पहले मैं कोई कनेक्टर नहीं लगाता हूँ, नेवर. इन अ फ्यू केसेस ऑन दी वन हैंड लगा देता हूँ. अगर तुमने ऑन दी वन हैंड लगाना है लगा सकते हो, पर वो भी तभी सूट करता है. ऑन दी वन हैंड देयर आर एडवांटेजेस, ऑन दी अदर हैंड देयर आर डिसएडवांटेजेस. तो ऐसे ऐसे में जहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड है, नहीं तो हर एक ऐसे में सूट नहीं करता है. तो वरना मैं पैराग्राफ 1 से पहले कोई कनेक्टर नहीं लगाता हूँ. पैराग्राफ 1 के अंदर जब मैं वर्ड्स लिस्ट करता हूँ, जब मैं पॉइंट्स लिस्ट करता हूँ, तो मैं अपने लिस्टिंग वाले कनेक्टर्स लगाता हूँ. फर्स्टली, सेकेंडली, या मेन एडवांटेज, अनदर एडवांटेज, अपार्ट फ्रॉम दिस. तो वो वाले वर्ड्स जो हमने बिल्कुल बिगनिंग में करे थे, वो वाले करता हूँ. ओके. अगर टोन चेंज है, मतलब अगर ऐसा है जो कम्प्लीटली एग्री नहीं है, मतलब उसमें थोड़े से हाफ से तुम एग्री कर रहे हो, थोड़े हाफ में डिसएग्री कर रहे हो, टोन चेंज है, या एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे ऊपर एडवांटेजेस दिए अब नीचे डिसएडवांटेजेस आने, तो फिर तुम यहाँ पे तुम किसी के साथ भी शुरू कर सकते हो. कैसे? however, या on the other hand, या फिर despite, in spite of, या फिर admittedly. You can use any of them. However, on the other hand, despite, in spite of, या फिर admittedly, use them.
and then you go about with your paragraph. Okay, and then you again use listing connectors जब यहाँ पे भी points आएंगे, like for example the main reason, another reason, फिर जब points आएंगे तो फिर ये वाले connectors दोबारा आएंगे, इनको लिखना पड़ेगा. बस ये कोशिश करना, जो paragraph, कोशिश क्या पक्का ये करना, paragraph 1 के जो listing words हैं वो match ना हो paragraph 2 से, use differently. दोनों paragraph में firstly, secondly, thirdly नहीं. If paragraph में firstly, secondly, तो second paragraph में something else. That is my big suggestion. And I'll tell you honestly, writing में बहुत students के 7.5-8 नहीं आते हैं, but some of my students scored 7.5 and 7.5 is the highest जो अभी recently मेरे किसी student के आए हैं. And I asked her तूने क्या करा? And she said, sir, जैसे आपने बोला था ना, मैंने अपने दिमाग में connectors बिठा लिए थे कि मैंने first paragraph में ये use करना है. Firstly, the second reason is that, finally, and second paragraph में मैंने use करना था the main reason, another reason apart from this. मैंने ये 3 connectors ऊपर, मैंने हर एक ऐसे में she said कि मैंने प्रैक्टिस ही ऐसे करने लगी थी. सर आपने नहीं नोटिस करा होगा, पर whatever ऐसे I gave you, I only use these connectors. मैंने अपने ये पिक कर लिए थे connectors, because you have to write one essay there. So why keep on changing? Just master one and then use them again and again. So she did that. She said, sir, फिर मेरे को सोचना नहीं पड़ता था. That is how she told me कि सर मेरे को फिर सोचना नहीं पड़ता था कि मेरे को अब कौन सा कनेक्टर लगाना है. मेरे दिमाग में पहले था कि मैं तो यही लगाती हूँ. That's it. I'm going to put it like that. I had practiced it. यहाँ पे मेरी grammatical mistakes आप मेरे को बता चुके थे, तो वो मेरी हुई नहीं. So everything went on perfectly. So she said that. So I would also recommend the same to you. So pick one, stick with it. Okay. Then final 2 like connectors हैं. I'll cover them quickly. Just give me 10 minutes. Reasons के लिए, जब तुमने reasons लिखने होते हैं तो देखो यहाँ पे देखो, there is a topic vocabulary. Topic vocabulary क्या होती है? जैसे तुमने कल crime assess करे तो crime assess की vocabulary. But then there is a general vocabulary. तो ये मेरे को general vocabulary की तरह कराने हैं, क्योंकि ये words repeatedly use करते हो, तुम भी करते हो. Because is such a word जो बार बार repeat होता है. तो because की जगह तुम क्या क्या use कर सकते हो? Owing to, due to, since, as a result of, caused by, stems from. तो ये इस कारण से होता है. So you can see all of them. मैंने एक हर एक का sentence ले लिया, क्योंकि हर एक की usage थोड़ी सी different हो जाती है. So just make sure you don't make the mistake while using them. Directly नहीं replace होते. For example, the number of people with diabetes is growing because of an increase in levels of obesity. तो diabetes वाले patient increase हो रहे हैं क्योंकि obesity बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, obesity बढ़ रही है. Next, the number of overweight children has increased dramatically, largely as a result of. Because of की जगह क्या लगा दिया? As a result of changes in diet and lifestyle, क्योंकि हमारी diet and lifestyle में change आ गया. Similarly, the increase in childhood obesity is largely due to, तो जो childhood में मोटापा बढ़ रहा है उसका main reason क्या है? Change in lifestyle and diet. So this is how you use due to. So I would say कि use them like 2-3 बार तो use करने ही होंगे, तो एक बार master कर लो. Due to use करना, owing to use करना. You can use them, do it due to, owing to, as. बस एक one final thing I want to add here is कि since एक word है उसकी usage थोड़ी सी different है. Since के बाद ना मतलब since के बाद तुम proper लिखते हो since he was ill, since his illness नहीं. Since के बाद तुम्हें पूरा expand करके लिखना पड़ता है. जैसे देखो owing to his illness, owing to के बाद तो सीधा आ गया उसकी illness. Owing to is like despite के बाद भी सीधा ऐसे आता है ना illness, तो ऐसे ही owing to के बाद भी illness आएगा. Since के बाद क्या आता है? Since के बाद पूरा खोल के आता है. For example, since he was ill, ये वाला sentence गलत है. Since his illness is wrong. Since he was ill, he could not continue with his studies. क्योंकि वो बीमार था, he could not continue with his studies. So I'm not focusing on them a lot because normal है. Just use a variety. Don't keep on using because. बस 2-3 बार use करना होता है because paragraph में 2-3 बार होता है use because. So use different ones. Don't use because again and again. As a result of, simple ले लो. Because, as a result of, owing to this, due to this, as a result of this, caused by this. So you can use any of them. Reasons के पहले ये words आते हैं. Okay. सबके example sentences हैं. You can see the format while using it and use it accordingly. हर एक का थोड़ा difference है. That is why देखो I tell my students
डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं होते. इंग्लिश इज नॉट अ क्रेजी लैंग्वेज. उन्होंने एक वर्ड के लिए 15 वर्ड नहीं बना दिए. थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही ना. सिनोनिम्स का भी मीनिंग ये नहीं होता सेम मीनिंग. सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सिमिलर मीनिंग. इफ इट वाज एग्जैक्टली द सेम तो फिर तो आई वुड कॉल इंग्लिश अ क्रेजी लैंग्वेज कि उन्होंने एक वर्ड के लिए तुम्हारे लिए 10 मीनिंग्स बता दिए, व्हिच इज वेरी इडियोटिक. तो वैसी लैंग्वेज नहीं है. जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. ओके, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक में मैं तुम्हें बता चुका हूँ. He could not continue his studies because he was ill. अलग-अलग sentences नहीं, because वाला sentence combine होता है. Please when you use them make one sentence. Do not make two sentences. Combine करके करना. Full stop नहीं लगा देना बीच में. Similarly words होते हैं. देखो, एक तो होता नहीं ये कारण है. अब कई बार क्या होता है हम ऐसे नहीं लिखते, हम पहले कारण लिखते हैं बिना because use करे. It rained today. आज बारिश हुई, इसलिए मैं मार्केट नहीं गया. अब कई बार तुम उल्टा करके लिख देते हो सेंटेंस को. तुम रीजन पहले लिख देते हो, फिर तुम रिजल्ट लिखते हो. तो कई बार तो उल्टा होता है. पहले रिजल्ट लिखते हो, क्या नतीजा हुआ, फिर तुम उसका कारण बताते हो. क्योंकि आई डिड नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज इट रेन टुडे. मैं मार्केट नहीं गया क्योंकि बारिश हुई. अब कई बार तुम उल्टा करते हो, आज बारिश हुई इसलिए मैं मार्केट नहीं करा. तो ये इसलिए वाले जो वर्ड्स है ना, वो ये वाले वर्ड्स हैं. therefore, hence, thus, so, for this reason. देखो, it rained today, therefore I did not go to the market. It rained today, hence I did not go to the market. It rained today, thus I did not go to the market. It rained today, so I did not go to the market. It rained today, and for this reason I did not go to the market. इस कारण से मैं मार्केट नहीं गया. तो ये सारे वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं उल्टे सेंस में. जब तुम इफेक्ट पहले दे रहे हो और रीजन बाद में दे रहे हो, पहले रीजन दे रहे हो बाद में इफेक्ट दे रहे हो, तो तुम ये वर्ड यूज करते हो. सो यू कैन सी इट. पहले क्या दिया है? ओके, पहले रीजन दिया है. चिल्ड्रन हु ग्रो अप ऑन डाइट ऑफ जंक फूड फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेंज दिस हैबिट. तो जो बच्चे जंक फूड पे पलते हैं उनको बाद में हैबिट चेंज करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है. इट इज एसेंशियल देयरफॉर दैट पेरेंट्स एनकरेज हेल्दी ईटिंग. इसलिए ये जरूरी है कि पेरेंट्स हेल्दी ईटिंग करें. तो ये कारण है. इस कारण का नतीजा ये है. इस कारण के कारण कोई लोग ये बता रहे हैं कि पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए. इसलिए पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे शुरू से ही हेल्दी खाना खाएं. सो दैट वे यू कैन फॉर्म अ सेंटेंस. ओके, इन्हीं की तरह एज अ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली भी यही इन्हीं के सिनोनिम्स हैं, बट उसका नतीजा होना चाहिए कुछ. तो बाद में इट शुड बी अ रिजल्टेंट एक्शन. उसके कारण ये हुआ. He needed to lose weight and therefore he started to exercise. He needed to lose weight and as a result he started to exercise. तो इस कारण से उसने ये चीज शुरू करी. तो जहाँ पे वो कारण बन जाता है एग्जैक्टली वहाँ पे तुम एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंटली भी बना सकते हो. इन दोनों का भी सेम मीनिंग होता है इसीलिए. पर जहाँ पे कोई रिजल्ट हो, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं था. देखो, एज अ रिजल्ट पेरेंट्स को इनकरेज नहीं करना चाहिए, इसलिए पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए. उसका नतीजा ये नहीं है. यहाँ पे उसका नतीजा ये हुआ कि उसको लूज वेट करना था और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपना एक्सरसाइज करना शुरू करा. इनका बहुत माइनर डिफरेंस है. इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाता है, बट दीज आर मोर कॉमन, दीज आर मोर ब्रॉड. ये कहीं भी यूज कर सकते हो, ये हर जगह नहीं सूट होते हैं. इसलिए मैंने पहले लिखे थे. therefore, hence, thus, so, for this reason. I use them. There are 5, not needed to have more than them. Again, मैंने sentences बनाए हुए हैं. You can check the usage. Okay. Similarly, last final thing, अगर तुमने conclusion करनी है, you can use any of these. सर ये undoubtedly मैम कई बार यूज कराती हैं, वो कहाँ पे यूज होता है? Undoubtedly is not a connector, but बस इसका ये meaning है true का synonym है. अब तूने लिखना ये बात नकारी नहीं जा सकती, ये बात सच है कि तूने ऐसे लिखना undoubtedly मतलब इस बात में कोई शक नहीं है. मतलब ये बात सच है कि undoubtedly आजकल for example undoubtedly आजकल प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज बढ़ गई है. कोई शक नहीं कि प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है. इसलिए कुछ लोग ये बिलीव करते हैं. therefore some people believe that. तो undoubtedly ऐसे आ गया. बस ट्रू का सिनोनिम है, ये बात सच है. ठीक है, not a connector, just a way to make a sentence, just to say something is true. True, undoubtedly. मैम इसके लिए another synonym मैम यूज करते हैं indubitable का भी यही मीनिंग होता है. इसका कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है. Another word मैम uses irrefutable. Irrefutable also means इस बात को नकारा नहीं जा सकता.
इट इज अनडिनाइबल, इस बात को डिनाई नहीं करा जा सकता, ये सारे वर्ड्स मैम यूज करते हैं उसके लिए। जिस वोकैबुलरी वाले वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज हो जाते हैं, इसलिए द undeniable. It's undeniable, so you can use anything. ये सारे उसके synonyms हैं, true क्या? Okay. Last thing I want to put, to conclude, in conclusion, to sum up, in summary. Please do not put phrases like to put it in a nutshell. Idioms वगैरह, phrases वगैरह नहीं use करने because they are informal. So conclusion should be proper use a word like to conclude, in conclusion, to sum up, in summary. Do not try to be different and use words like to put it in a nutshell. ये गलत है, बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? Neither, please do not use idioms like every rose has thorns, क्योंकि ये idioms वगैरह जो है ना, ये बहुत वो लगते हैं। एक तो ये वाला idiom तो जब students use करते हैं ना, they use it like this, कि जैसे हर एक रोज के thorns भी होते हैं, besides its beauty, every rose has its thorns, हर एक रोज के thorns भी होते हैं, मतलब advantages वाली side के disadvantages भी होते हैं। एक तो ये cliched है, overused है, ये idiom। सेकेंडली ये गलत क्यों है? क्योंकि ये इनफॉर्मल कर देता है। एक फॉर्मल राइटिंग, अगर तुम किसी प्रोफेसर को कुछ सबमिट कर रहे हो, उसमें नहीं लिखा होगा एवरी रोज हैव इट्स थॉर्न, हर एक रोज के थॉर्न्स होते हैं, वहां पे लिखे होंगे कि एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो गो फॉर्मल, डू नॉट यूज इनफॉर्मल इडियम्स इन योर essay. So ये बातें बिल्कुल नहीं करनी, to put it in a nutshell, like every rose has thorns. Be formal, be simple. Pick any one of them. To conclude, in conclusion, to sum up, in summary, pick one, go with it. Do not try to impress the examiner here. Okay? So that would be my suggestion with these. So this was my whole class on connectors. Bhushan, bol. नहीं, मेरे को सुन नहीं रहा, दोबारा बोल। सर कंक्लूजन वाला पूरा दस दो एकदम ना, आपकी तरफ सुनते हैं। कंक्लूजन वाले में मैंने यही बोला, जब कंक्लूजन स्टार्ट करनी है ना, तो तुम इनमें से कोई भी चार में से पिकअप कर ले। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू सम अप, इन समरी। डू नॉट लाइक, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ऐसे वर्ड्स ढूंढ लेते हैं नेट से, टू पुट इट इन अ नटशेल, अगर मैं शॉर्ट में बात कहूँ तो। पर ये ईडियम्स हैं, ये इनफॉर्मल है, तो ये नहीं यूज करने। मैं यही कह रहा था, बस ये यूज करना है जब कंक्लूजन स्टार्ट करनी है, बस ऐसे स्टार्ट करनी है, टू कंक्लूड, कॉमा, कुछ नहीं। इन चारों में से कोई भी एक पकड़ ले, उनसे स्टार्ट कर ले, दैट्स इट। Don't pick anything like to put it in a nutshell. Don't say every rose, कोई idiom मत उठा लो, every rose has thorns, या every coin has two sides। ये बच्चे यूज करते हैं कि एडवांटेजेस के साथ साथ हर एक चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। idioms हैं, informal हैं, they do not help you getting bans, they actually reduce your bans. So do not use those idioms. That is what I was telling here. Okay, मैं तो ये कह रहा था, go simple. बस ये पिक करो, इसमें से go formal language, keep up with the formal language, do not lose bans unnecessarily. I'll be honest with you, if your English is good, you're grammatically good, if you write a simple essay, there is no way the examiner can give you less than 7 to 7.5 bans. मैंने बिना preparation के जो first time essay दिया करा था, तो I got 7.5. मुझे तो IELTS का पता भी नहीं था, बस normal language में लिख के आया था, nothing I did special. So बस उल्टी चीजें सीख के गलतियां होती हैं। बट मेरे को IELTS का पैटर्न पता था, मुझे ये नहीं पता था मतलब कि idioms, मतलब मैं यूज ही नहीं करता था, मैं idioms ऐसे नहीं यूज करता था फॉर्मल राइटिंग में। I just wrote a simple essay and 7.5, no vocabulary. I'll be honest with you, not at one place in my essay I thought कि मैंने इस वर्ड की जगह vocabulary डालनी है। एक बार नहीं सोचा, मैंने कुछ स्पेशल नहीं करा, बस सिंपल इंग्लिश में लिखा है अपना essay. That's what I did. May I add something? इनको कोई होमवर्क दे दो academic students को अभी, बाद में फिर नहीं तो पूछते हैं बच्चे। तो I'll give you an essay. So try to use the linking words in that essay. I'll give you an essay from the media crime essays, so you can practice one of the essays from the crime essays, and you can practice that. If you have any doubts, let me know. बताओ anything. सर जो डिस्कशन ऐसे होते हैं ना, डिस्कशन एंड ओपिनियन, तो Yes. जैसे आपने कहा कि इंट्रोडक्शन में हमको वाइल ऑल दो नहीं लगाना है, तो सर जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि वाइल सम पीपल बिलीव दिस, और फिर कॉमा डाल के अदर्स का ओपिनियन, तो वैसे लिख सकते हैं ना सर? हाँ, डिस्कस ऐसे में वो चलता है। वाइल एंड ऑल दो तो मैंने कराया था कि ओपिनियन वाले में लिख सकते हैं, और वेयर एज भी लिख सकते हैं ना कि सम पीपल बिलीव दिस वेयर एज अदर पीपल बिलीव दिस। yes, but again देखो वो
I'll tell you the mistake that happens. Mm-hmm. So some people believe this, Mm-hmm. comma, while others believe that. ये ठीक, Okay. यहाँ पे comma है. But हाँ हाँ सर. ठीक है ना? Don't हाँ. disconnect the sentences and write. Okay. ठीक है? और ओके और एक चीज और पूछनी, जैसे कि जो एसेज होते हैं, इस दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. सपोज दैट मैं नेगेटिव की साइड हूँ, तो जब मैं नेगेटिव वाला पैरा स्टार्ट करूंगी तो मैं ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ कि ऑन द नेगेटिव साइड, और जो भी फिर मेरी चीजें हैं वो उनको एनलिस्ट कर दूँ. Yes, on the negative side you can start. और ऑन द पॉजिटिव साइड. Yes. Yes. Okay. But it's not necessary to use it. You can. Okay. Okay. You can simply start with, there are many disadvantages of this. You can simply start with that also. It's not a needed connector there. That's it. ओके ओके. मीन्स फिर उसकी जगह ये है कि अगर अच्छा लिखना है तो फिर जो जैसे कि द मेन एडवांटेजेस और जो भी चीजें हैं वैसे लिख सकते हैं. Yes. Yes. ओके सर. Okay. So I'll send you the essay right now for everyone. Any other doubts? Reading share करिए अभी मैंने एक, that is the 40th reading of our volume 2 book for the academic students. Please get a printout जिनके पास नहीं है, और आज वो reading करनी है अपने 1 hour की बैठ के. Tomorrow I'll be discussing it with you. And secondly 32nd reading के answers मांगे थे वो मैंने डाल दिए हैं. Please check the group. Okay. And I've added Indroop, I've added an essay in the private chat. See if that is okay to be given. You can give that. Yes, you can put that. Okay. तो बता दो अभी इनको कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दो. Okay, I'll paste and copy the essay for all of you. Yeah. You can write it and send it to ma'am. Sir, please share this PDF on group. Okay. नीचे है ये, कॉपी पेस्ट कर दे, फिर पीडीएफ शेयर कर देना. They'll have this essay. I've shared it with the academic students. ठीक है, ग्रुप में आ गया ना? ठीक है. And I'll share the PDF right now. बहुत अच्छा लेसन सर, बहुत गुड, अच्छा था सर. सारे डाउट क्लियर हो गए. कनेक्ट. Thank you sir. You're welcome. Yeah, thank you, ma'am. This said Vivek, it's very informative for me because I did too much mistake, like to put a nutshell and then starting also. Seriously, now I realize what is the reason behind I'm getting a less mark. Yes. So Vivek, if you realize that, you will start improving. Okay. Yes, ma'am. I need to do a lot of. And Indroop sir took quite some time to prepare this lesson and make it easy for all the students. He really worked hard on preparing this lesson. I could see that at home. He's like very seriously was doing it, that he has to explain all the points. Yes, ma'am. Because I used some of the things in the wrong manner. Yes. So now I know how to use these things. Vivek, you are in the group. Why don't you start writing and sending me for the corrections and all, okay? So yes, ma'am. And now I start from today itself because I have off today and tomorrow. So. Yes. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Yeah. Thank you very much, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.